Good evening, everyone. In this class, we will continue relations, but as in the last previous class, I gave you probability to do and और मैंने कहा था कि इसका हम डाउट सॉल्व करेंगे but today I'll not solve doubt. Okay. Tomorrow I'll give you extra class, and in that extra class I mean clear all your doubts of probability. But right now in this class, I'll continue relations. Okay, everyone. So I don't think you have any doubt in exercise 20, sorry, 2A. All right. Do you have any doubt? I think my voice is audible. So today I'll complete relations. Okay? And after I complete relations, today I'll send you the video of functions. Okay, you watch that video. Again, I'll explain that in the class. Because see everyone, functions is a bit different chapter. Okay, it's a bit. I mean, thoda sa baki sab chapters se thoda alag hai. So what I'll do is I'll give you one video. I'll share video with in the group. Watch that video and again we will redo in the class. तो इससे क्या होगा डबल दो बार देखने से क्या होगा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो अब हम लोग आज पहले क्लास में रिलेशन से शुरू करते हैं. ओके. So what do you mean by relations? Everyone listen here. And then you have functions. So what do you mean by relations? Look here. So let us take two sets first. Let's take a -1, 0, 2, 3, 4, and 5. And set b, which is -2, -3, -4, -6, -5, 0, 1, 3, 4, 7. Now just everyone try to understand the difference between a relation and an ordered pair. रिलेशन और ऑर्डर पेयर में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, इसको थोड़ा कोशिश करना समझने को. ध्यान दें. Suppose if I ask you what is A cross B, you know that A cross B is a set of an ordered pair of two components where the first component belongs to set A and the second component belongs to set B. So in this way, if I just see this rules, so according to this, we find that the elements in A cross B are -1, -2, -1, -3, and so on. You will have total how many elements? Can you tell me? In A cross B, you will have how many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 6 10s are 60. So it is not possible to represent all 60 elements. So मैंने यहाँ पे बस डॉट डॉट लिख दिया. ठीक है, मतलब इसके अंदर टोटल 60 एलिमेंट्स है. एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स? यू ऑल नो दैट वेरी वेल. द एलिमेंट्स आर -1, -2, -3, -1, -4, -1, उसके बाद 0, मतलब ऐसे करके बहुत सारे टोटल 60 एलिमेंट्स है. नाउ जस्ट लेट अस सी ऑन द अदर हैंड a set which is denoted with R. Here R means the name of the relation. R means the name of the relation. So what does R means? R means a set. ठीक है, जो यहाँ पे दो पर्टिकुलर सेट के R is a set जो दो सेट का एलिमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है. So मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. What is R? R is the name of the relation, and this relation is set of an ordered pair only where X is related to Y. X is related to Y. X belongs to a set, Y belongs to, and Y belongs to another set. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो यहाँ पे R का मतलब क्या है? R एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर होगा.
और ये दोनों जो ऑर्डर पेयर जो यहां लिखेंगे वो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स और वाई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, और वी कैन से दिस वे x and y satisfies a particular condition, or we can say x and y qualifies a particular condition where x belongs to a particular set, y also belongs to a particular set. Now let us take one example. R is a set, R is a relation set of an ordered pair where x plus y is equal to 0. x belongs to set A and y belongs to set B. मतलब यहां पे रिलेशन R के अंदर कौन सा कंडीशन x और y सेटिस्फाई करना चाहिए? आई रिपीट, ये रिलेशन R के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर का जो कंपोनेंट्स है, ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? ये दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया तो बात? ये दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन इज अ सेट ऑफ एन ऑर्डर पेयर where the association of x and y, when we are trying to relate x and y, that particular x and y must satisfy the given relationship, it must satisfy the given condition. ओके, तो वो कंडीशन जो भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो कंडीशन जो मैंने बात किया कंडीशन का, ये कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों का जो ऑर्डर पेयर का जो सम है वो 0 के बराबर है। ओके, तो इसके हिसाब से अगर मान लो इस सेट को ले ए और बी को, तो एक बात बताओ तो रिलेशन आर के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर्स आ सकते हैं? बताओ तो, चलिए। यस, -1, -1 का किसके साथ सम जो है वो 0 होगा? क्लियरली 1 के साथ। तो -1, 1, प्लीज डोंट राइट 1, -1 because the first component belongs to set A, second component belongs to set B. ऑलराइट, तो यहां पे मैंने क्या लिखा? पहला कंपोनेंट जो है वो सेट ए से ले लिया, जैसे -1। अब -1 को किसके साथ हम ऐड करेंगे सेट बी का, तो इसका आंसर 0 आएगा। सो इट इज -1, 0 को किसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा? 0, 0, 0। उसके बाद 2 को किसके साथ ऐड करने से 0 आएगा? -2, 2, -2, 3, -3। उसके बाद 4, -4। उसके बाद 5, -5। अब एक चीज ध्यान से नोट करो तुम लोग, ए क्रॉस बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, लेकिन आर रिलेशन आर के अंदर सारा एलिमेंट्स नहीं है। बट रिलेशन आर के अंदर सारा एलिमेंट्स नहीं, ओनली सेलेक्टेड एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट है जो ये पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे? कौन सा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? ओके, तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लो आर का जो ऑर्डर पेयर है वो अगर ए टू बी है, व्हाट डू मीन बाय ए टू बी? पहला कंपोनेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट सेट बी को, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि R is a subset of A cross B? Can I say that R is a subset of A cross B? अच्छा, do you understand the meaning of this symbol subset? If you don't know the meaning of please add this symbol, please let me know so that I can explain it. I hope you all know the meaning of this symbol. I mean subset. Subset का मतलब पता है ना तुम लोगों को? ये सेट जो है इसका अगर सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर अगर बिलोंग करता है तो फिर हम लोग ये वाले सिंबल यूज करके हम लोग रिलेट कर सकते हैं दो सेट को। तो सबसे पहले जितना मैंने समझाया है पहले वो बोर्ड का कॉपी करो सबसे पहले। ओके, कॉपी डाउन जितना अभी तक हम लोगों ने देखा है, just copy down. So let us once again define what is the meaning of relation. Listen, a relation is a set denoted with R, so we can say that R is the name of the set called relation. Okay, it contains elements in ordered pair format where x and y must satisfy a particular condition.
satisfy the given condition where we find that x belongs to a set, y belongs to another set, or x comma y both may belong to the same set also. ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जो है वो एक ही सेट को बिलोंग करें, एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और एंड वी कैन से दैट R is a subset of A cross B. If R is a relation on, if R is a relation from A to B, if R is from A to B, then we can say that R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross A if R is on A. What is the meaning of R is on A? Try to understand the meaning. R is on A का मतलब ये हुआ कि जो पहला कंपोनेंट है और जो सेकंड कंपोनेंट है दोनों एक ही सेट को बिलोंग करेंगे। जब दोनों कंपोनेंट एक ही सेट को बिलोंग करता है तो इस केस में क्या लिखा होता है? R is on A, मतलब पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट दोनों एक ही सेट को बिलोंग करेंगे। अगर दोनों कंपोनेंट अलग अलग सेट को बिलोंग करता है तो क्या लिखा रहेगा? R is from A to B. A to B का मतलब पहला कंपोनेंट A को बिलोंग कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट B को बिलोंग कर रहा है। इस केस में जो R जो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, जो रिलेशन R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, और इस केस में A क्रॉस A का सबसेट होगा। ऑलराइट, कीपिंग इन माइंड if A and B are non-empty set, okay, if A and B are non-empty sets, मतलब A और B क्या होना चाहिए बताओ? तो non-empty sets होना चाहिए। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और ये चीज को पूरा क्लियर करते हैं, ध्यान देना। सपोज एक क्वेश्चन है, लेट्स टेक अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सपोज यू हैव अ सेट A where you have ordered pairs of two components, x square is equal to y, x belongs to set A and y belongs to set B. Sorry. Here we find that set A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो -1, 1, 2, -2, 3, 4, 5, 0 है, और सेट B के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1, 4, 6, 5, 7, 9, 9 इतना है। ठीक है, अब ध्यान देना। नाउ टेल मी एवरीवन, आंसर देखिए ध्यान से। इस सम में हम लोग को दिया हुआ है सेट ए, और सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? -1, 1, 2, -2, 3, 4, 5 एंड 0। ठीक है, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? 1, 4, 6, 7, 9। एंड व्हाट इज रिलेशन आर? रिलेशन आर इज फ्रॉम, आई कैन से A to B, बिकॉज यहाँ पे पहला कंपोनेंट A को बिलोंग कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट B को बिलोंग कर रहा है, और R क्या है? x, y, x square equals to y, x belongs to set A and y belongs to set B है। तो बता सकते हैं तुम लोग कि R के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर्स आएगा? यस, इस सेट R के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर्स आएगा? गिविंग यू टाइम टू फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड टेल मी। यस, -1, 1, -1, 1 आएगा। अच्छा, और 4, 1, 4, 1, 1, बिकॉज लिसन हियर, x का स्क्वायर मतलब इस कंपोनेंट का स्क्वायर जो है वो y के बराबर होना चाहिए। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो देखो तो एक बार y मतलब सेकंड कंपोनेंट सेट B के अंदर बिलोंग करना चाहिए, मतलब -1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए। -1 को स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 आएगा। चेक करना -1, 1 बिलोंग करेगी, 1 बिलोंग करेगी इस सेट में। यस, उसके बाद 1 लिया मैंने, उसका स्क्वायर किया, तो आंसर क्या है? 1। मतलब x का वैल्यू -1 लिया मैंने, तो y का वैल्यू 1 है। नाउ चेक करो कि y का वैल्यू 1 क्या बिलोंग कर रहा है? यस, मतलब माइनस, वो तो हो गया। उसके बाद x का वैल्यू मैंने 1 लिया, तो यहाँ पुट करके y का वैल्यू क्या है? वो भी 1 है।
चेक करो y का वैल्यू 1 है यहाँ पे, यस 1,1 ली थी। नाउ 2 को ले लिया मैंने x का वैल्यू। इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2? 4, मतलब y का वैल्यू 4 है। देखो तो y इक्वल टू 4 यहाँ बिलोंग कर रहा है सेट b में, यस, तो हम लोग 2,4 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद -2 अगर हम ले x का वैल्यू तो y का वैल्यू क्या आएगा? 4 आ जाएगा। चेक कर लो, x का वैल्यू -2 ले तो y का वैल्यू क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू 4 यहाँ बिलोंग कर रहा है, यस, तो -2,4 भी यहाँ बिलोंग करेगा। नाउ लेट अस टेक 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर हम x का वैल्यू 3 ले ले तो y का वैल्यू क्या है? 9। चेक करो कि यहाँ पे y का वैल्यू 9 है, यस, 3, 9 -3, नहीं यहाँ -3, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 16 नहीं बिलोंग कर रहा है। मतलब जब हम x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 16 आ रहा है। क्या यहाँ पे 16 कहीं बिलोंग कर रहा है सेट b में? नहीं, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद लेट्स टेक 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25, यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। 0 का स्क्वायर 0, यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब रिलेशन R के अंदर इतने सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। समझ में आया? चेक कर लीजिए, क्लियर हुआ सबको? अगर मान लो कोई, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ऐसे रिलेशन देके लिखा जाता है, फाइंड द ऑर्डर पेयर्स, मतलब ये हो गया ऑर्डर पेयर्स। अब सुनिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डोमेन ऑफ रिलेशन R? ये जो R रिलेशन है इसका डोमेन क्या है? अब ये डोमेन क्या होता है सुनना एक बार। रिलेशन R का जो पहला कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट, उसको एक सेट के अंदर रखना, उस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन सेट बोलते हैं। सो व्हाट इज डोमेन ऑफ रिलेशन R? इट इज -1, 1, 2, -2, 3. Is this clear to everyone? So what is the meaning of domain? Domain is a set of first component of ordered pairs. जो पहला कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का रिलेशन में, उसको एक सेट के अंदर अलग से लिख दो। इस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन सेट बोलते हैं। नंबर 2, रेंज ऑफ रिलेशन R। रेंज का मतलब क्या होता है सुनना, रिलेशन R का जो ऑर्डर पेयर्स है उसका सेकंड कंपोनेंट को एक सेट के अंदर लिखना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज। तो कोई बता सकता है इसके हिसाब से रेंज के अंदर क्या क्या है? 1, 4 और 9। 1 को 2 बार लिखना जरूरी है क्या? नो सर, सेट में वो एक ही बार होता है। 1 को 2 बार लिख के भी कोई फायदा नहीं है, 1 एक ही बार काउंट किया जाएगा। 1, 4, 9, ये हो गया रेंज, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है? ऑर्डर पेयर्स का जो सेकंड कंपोनेंट है उसको एक सेट के अंदर लिखना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कोडोमेन? जैसे ये ना तीसरा जो कंसेप्ट है इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये है कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन ऑफ R? एक बात बताओ, रिलेशन R का जो सेकंड कंपोनेंट है वो किस सेट को बिलोंग कर रहा है? सेट A को बिलोंग कर रहा है या सेट B को बिलोंग कर रहा है? बी। सेट बी। तो पूरा सेट B जो है वो कोडोमेन होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिलेशन R का जो सेकंड कंपोनेंट है वो जिस सेट को बिलोंग करता है वो पूरा सेट हो जाता है कोडोमेन। और लास्ट होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होता है? जैसे ये रिलेशन A टू B है तो यहां A लिख देना, यहां B लिख देना। A टू B मतलब A का एलिमेंट्स को B के साथ एसोसिएट करना है हम लोग को यहाँ पे। सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, सेट A के अंदर जितने एलिमेंट्स है यहां लिख देना। सेट B के अंदर जितने एलिमेंट्स है यहां पे लिख देना। ओके हो गया? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखना है तुम लोग को, अब यहाँ पे देखना है तुम लोग को कि यहाँ पे -1 सेट B का किस एलिमेंट से रिलेटेड है? बताओ तो इधर, किसके साथ एसोसिएटेड है? बताओ तो। 1। तो -1 1 के साथ एसोसिएटेड है, तो 1 -1 और 1 को कनेक्ट करके बीच में एरो, ऐसे मत देना, ऐसे देना A टू B। उसके बाद -1 का किसी के साथ है? नहीं, 1 का 1 के साथ है। उसके बाद 2 का 4 के साथ एसोसिएशन है। उसके बाद -2 का 4 के साथ है। उसके बाद 3 का 9 के साथ है। समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरो डायग्राम बोलते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन।
यस, क्लियर हुआ? तो अब एक बार Yes, सबको sir. कॉपी करेंगे. So I want your attention everyone, just note down. So एक बार क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, ठीक है? मैंने कराया कोई और तरीके से, यहाँ लिखा हुआ है किसी और तरीके से, ध्यान दें इसका मतलब क्या है. सबसे पहले हम यहाँ पे a लिख लेते हैं, ठीक है? सेट a दिया हुआ है, सेट a दिया हुआ है -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है? ये दिया हुआ है. List the ordered pairs determined by each of the following relations applied on A. Can you explain me the meaning of applied on A का मतलब क्या होता है? Can you explain me? What do you mean by applied on A? Relations applied on A? Yes. यानी A into A. Very good. मतलब यहाँ पे R on A है. मतलब यहाँ पे जो भी रिलेशन है, यहाँ पे जो भी रिलेशन है, 4 क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट. जो भी यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो दिखाया हुआ है, 1, 2, 3 और 4, देखो ये 4 क्वेश्चन, सारा में जो अलग अलग रिलेशन है वो आर ऑन क्या है बताओ तो? आर ऑन ए है. मतलब यहाँ पे जो रिलेशन का पहला कंपोनेंट है वो भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है और सेकंड कंपोनेंट भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है. ओके, अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखते हैं. R1 इक्वल टू इज लेस देन. अब हम तुम लोग को बताते हैं इसको समझने का सबसे बेटर तरीका. इस लेजर है तो देखो यहाँ पे इसको तुम लोग ऐसे समझना, जैसे मैंने समझाया उसको ऐसे रिप्रेजेंट करके देखो. x, y सच दैट इस लेस देन के लेफ्ट में x दे देना और राइट में y दे देना. पूरा स्टेटमेंट के x इज लेस देन y. समझ में आया तो बात? x, y where x, y belongs to A. समझ में आया था? सबको को समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब पहले एक बार कंप्लीट करें. मतलब हम यहां से क्या करेंगे, x सेट A से चूज कर लेंगे. लेट्स टेक -2 और देखेंगे कि -2 कितने एलिमेंट, मतलब y भी सेट A को ही बिलोंग कर रहा है. तो बताओ तो -2 कितने सारे एलिमेंट से छोटा है? बताओ तो -2 कितने से किसके से छोटा है? टेल मी. x is less than y, so tell me. Yes. -1, 0, 1, 2. -2 is less than -1. Yes. -2 is less than 0. Yes. -2 is less than 1. -2 is less than 2. Yes, it is true. Let's take the value of x equal to -1. अब -1 किसके से छोटा है? -1 0 और 1 2 से छोटा है. तो यहाँ पे -1, 0, -1, 1, -1, 2. Now let us take the value of x equal to 0. 0 किससे छोटा है? 0, 1, 0, 2. Let us take x equals to 1. 1 2 से छोटा है. Let us take x equals to 2. 2 किसी से छोटा है? Okay. तो ये हो गया रिलेशन R1. समझ में? Now let us discuss question number 2 also first. देखो लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ, लिखा हुआ है कि R2 is equal to ए स्क्वायर ऑफ. तो क्या करना तुम लोग? R2 equals to ordered pair of x and I mean two components. is के पहले x लगा दो और पूरा के बाद y लगा दो. x is square of y. ठीक है? where x, y belongs to set A. तो बताओ तो x is square of y मतलब x is square of y. समझ में आया तो बात? Is this clear to everyone? X Yes. is square of y. Yes, sir. तो अब बताओ तुम लोग कि अगर मान लो x का वैल्यू -2 ले ले, या ऐसे डायरेक्ट सोचो ना कि y का वैल्यू कौन सा अगर हम ले तो उसका स्क्वायर करने से x का वैल्यू के बराबर है. ऐसे सोचो. क्या -2 का -1. स्क्वायर, क्या -2 का, लेट्स टेक दिस वे, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2. तो -2 का स्क्वायर 4. क्या यहाँ पे x का वैल्यू 4 बिलोंग कर रहा है? नहीं. लेट्स टेक y इक्वल टू -1. -1 का स्क्वायर 1 बिलोंग कर रहा है? यस. मतलब जब हम y का वैल्यू -1 लेंगे, x का वैल्यू 1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है. मतलब R2 के अंदर क्या आएगा? 1, -1. उसके बाद मान लो 0 लेते हैं हम लोग y का वैल्यू. y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0.
देखो तो x का वैल्यू 0 मतलब 0 0 बिलोंग कर रहा है। हाँ ये तो 0,0 लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 1 का स्क्वायर 1 1 तो यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है तो 1,1 लिख देते हैं। उसके बाद ले लेते हैं हम 2 y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू 4 है, 4 और 2 बिलोंग कर रहे हैं यहाँ नहीं, इसका मतलब इसको नहीं लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। अगर हम x का वैल्यू y का वैल्यू -2 ले तो x का वैल्यू 4 आएगा, -2 और 4 बिलोंग कर रहे हैं, देखिए ये नहीं लेना। सो समझ में आ गया, 3 एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, 3 ऑर्डर पेयर्स। सो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, इट इज गेटिंग क्लियर एवरीवन, ठीक है ना। अब तुम लोग एक काम करो, सम नंबर 8 का 3 और 4 अभी करो तो फटाफट। सम नंबर 8 का 3 एंड 4, आई थिंक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना रिलेशन के बारे में। कोई भी अब इसमें इस एक्सरसाइज में कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये एक्सरसाइज खत्म मतलब रिलेशंस खत्म हो गए। तो जल्दी से 8 का नंबर 3 एंड 4 अभी कंप्लीट करो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स? -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 2, और 2 का -2, दोनों ही एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो याद रखना, अगर दो नंबर्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है तो दोनों का सम हमेशा 0 होना चाहिए, याद रखना। ओके सो आई थिंक ये हो गया नंबर 8 का सारा सम्स ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7 का बी। x is a prime number less than 10, everyone do 7 का b। सर सर 8 का 4 एक बार समझा दीजिए ना। 8 का 4 इज इक्वल टू मतलब x इक्वल टू y, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। तो कौन कौन सा -2, -2 आएगा, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, बस खत्म। सर वो फिर -2 और -2 दो बार हो गया ना। तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, x और y इक्वल, x इज इक्वल टू y, x इक्वल टू y है ना, यहाँ लिखा ही तो है इज इक्वल टू, मतलब दोनों नंबर्स इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम 1, -1 तो ले नहीं सकते ना, दोनों इक्वल नंबर्स लेना पड़ेगा। ओके सर। In 7 का b you have a relation R, okay? You have a relation R, x comma x cube, x is a prime number less than 10. So what are prime numbers less than 10? 2, 3, 5, 7, या 7। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह 2 लगा देंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3, 27, 5, 125, 7, how much? कितना होता है 7 का क्यूब? 343। और तुमको अगर डोमेन रेंज बोलेगा तो पता ही है डोमेन मतलब क्या होता है, कोडोमेन मतलब क्या होता है पता ही है। So everyone, with this we have completed relations, okay?